श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृति ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. நிர்யாதனா பத்ததிகி அஷ்டமி. பரதன் பாதுகையை எழுந்தருளப் பண்ணி பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைத்தது மகோத்சவமாக இருந்தது. சக்கரவர்த்தி திருமகன் 14 வருடங்கள் கழித்து திரு அயோத்திக்கு எழுந்தருளிய போது ஸ்ரீ பரதாழ்வான் பாதுகையை திருப்பி அவரிடத்தில் கொண்டு சமர்ப்பித்த உற்சவம் அதை காட்டிலும் மேலாக இருந்தது என்று இந்த நிர்யாதனா பத்ததியை குறிப்பிடுகிறார். பாதுகைகளுக்கு முதலில் பட்டாபிஷேகம் நடந்ததால் தான் சுக்ரீவனுக்கும் விபீஷனுக்கும் பட்டாபிஷேகம் நடந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார். சரையு நதியும் தமசா நதியும் ஒன்றாக சேர்ந்து பட்டாபிஷேக தீர்த்தத்தை சமுத்திரத்தில் கொண்டு சேர்ப்பார்களாம். அதனால்தான் ஸ்ரீராமன் சமுத்திரராஜனிடம் கோபம் கொண்டு ஆக்னேயாஸ்திரம் போட்டும் சமுத்திரம் வற்றவில்லை என்று கூறுகிறார். இதன் உட்கருத்து என்னவென்றால், ஆச்சாரியர்களுடைய குளிர்ந்த கடாட்சம் நம்மேல் பட்டுவிட்டால் பெருமாளின் கோபம் கூட பலிக்காது என்றாகிறது. பாதுகைக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆயிற்று. உடனே ஹனுமன் லங்கையை கொளுத்தினார். அப்போது ஜலத்தில் இருந்து அக்னி உண்டாகிறது என்ற வேத வார்த்தை மிகவும் சரிதான் என்று ஜனங்களுக்கு தெரிந்தது. பரதன் திருமுடியில் ஸ்ரீ பாதுகையை தாங்கி பெருமாளை எதிர்கொண்டார். அப்போது சீதை பிராட்டி கைகளை கூப்பி தாளை முதலான தோழிகளை பாதுகையை சேவிக்குமாறு ஆக்ஞாபித்தார். ஸ்ரீ ரங்கநாதனே ஸ்ரீராமராய் அவதரித்து கானகம் சென்று ராட்சசர்களை கொன்று திரும்பி அயோத்திக்கு எழுந்தருளி பரம்பரையாய் வந்து தன்னுடைய பட்டத்தை தான் வாங்கி கொண்டு தன்னுடைய திருவடியை பாதுகாதேவிக்கு கொடுக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஸ்ரீ பரதன் பாதுகையை மறுபடியும் ராமனிடம் சமர்ப்பித்து பெரிய துக்கமாகிற மகா சமுத்திரத்தை தாண்டினார். பெருமாள் பக்தர்களுக்குள் பரதனுக்கு சமானம் வேறு ஒருவரும் இல்லை என்பது லோக பிரசித்தியாயிற்று என்று குறிப்பிட்டு இந்த பத்ததியை முடிக்கின்றார். நிர்யாதனா பத்ததிகி அஷ்டமி. அபிஷேகோத்சவா தஸ்மாத் யஸ்யா நிர்யாதனோத்சவஹ அத்யரிச்யதாம் வந்தே பவ்யாம் பரத தேவதாம். அபிஷேகோத்சவா தஸ்மாத் யஸ்யா நிர்யாதனோத்சவஹ அத்யரிச்யதாம் வந்தே பவ்யாம் பரத தேவதாம். உபாஸ்ய வர்ஷாணி சதுர்தசத்வாம் உத்தாரிகாம் உத்தர கோசலஸ்தாஹ சனந்தநாத்யை அபி துர்விகாகம் சாந்தானிகம் லோகமபாபுரக்யம். பாதாவணி பிரத்யயிதோ ஹனுமான் சீதாமிவத்வாம் சிரவிப்ரயுக்தாம் பிரணம்ய பௌலஸ்ய ரிபோருதந்தம் விஜ்ஞாபயாமாஸ விநீதவேஷஹ தவாபிஷேகான் மணிபாதரக்ஷே மூலே நிஷேகாதிவருத்தியோ ஸ்யாத் ஜஹுஸ்ததைவ த்ரிதசாங்கநானாம் த்ரம்லானதாம் பத்ரலதாங்குராணி சர்வதஸ்ததபிஷேகவாசரே சம்யக் முத்ருத சமஸ்தகண்டகே ராகவஸ்ய விபினேஷு பாதுகே யத்ர காமகமதா வியவஸ்திதா கிம் சதுர்தசபிரேவ வத்சரைஹி நித்யமேவ மணிபாதுகே யுவாம் பாதயோ திரிபுவனாதிராஜயோஹோ யவ்வராஜ்யம் அதிகச்சத ஸ்வயம். ராமஸ்ய ராட்சசவத த்வரிதஸ்ய காலே பாதாவணி பிரகடயன் நிவபாஷ்ணிகுப்திம் ஆசித்ரகூடம் அதிகம்ய சசம்சவார்த்தாம் அவ்யாஹத தத் அபிஷேக மிருதங்கநாதஹ பத்ராணி தேவி ஜகதாம் பிரதிபாதயிஷ்யன் பிராகேவ ஏன பவதீம் பரதோப்யஷிஞ்சத் மன்யே கபீஸ்வர விபீஷணயோ யதாவத் சந்தன்யதே ஸ்ம ததயேவ கிலாபிஷேகஹ. संविद्यमान तमसा सरयूपनीतैः
संवर्धितस्तव सुबै अभिषेकतोयैः मन्ये बभूव जलधिर्मणिपादरक्षे रामाश्च पावकशिखाभिरशोषणीयः पादावनी त्वदभिषेचनमङ्गलार्थम् बेरी सदमृसम् अदाट्यत यत्प्रतीतैः आकर्ण्यतस्य सहसा तुमुलं निनादम् लङ्काकवाडनयनानि निमीलितानि तावोद्गमस्तदभिषेकजलप्रवाहैः उत्सारितस्त्वरितम् उत्तरकोसलेभ्यः लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे लङ्कावरोधसुदृशां हृदयेषु वासम् आवर्जितं विधिविधा मणिपादरक्षे पद्मासन प्रियसुतेन पुरोहितेन आसीन्निदानम् अभिषेकजलं त्वदीयम् नक्तञ्जर प्रणयिनी नयनोदकानां देवी त्वया श्रपनसम्पदि संश्रितायाम् दत्ते पुरे दशमुखस्य बलीमुखेन आसीत् तद प्रभृति विश्वजनप्रतीतम् अद्योऽग्निरित्य विदतं वचनं मुनीनाम् आयोत्यकैत्वदभिषेकसमिद्धहर्षैः आत्मा पिता श्रुतिसुखं ननुते तदानीम् रामस्य राक्षसशिरो लवनेऽपि असाम्यन् येषां ध्वनि विजयशङ्करवो बभूव प्रदयितुम् अभिषेकं पादुके तावकीनम् दुरितशमनदक्षे दुन्दुभौ ताड्यमाने सपति परिगृहीतं साध्वसं देवि नूनम् दशवदनवधूनां दक्षिणै नेत्रकोशैः रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे यदा त्वाम् अखिलभुवनमान्याम् अभ्यषिञ्जत्वसिष्ठः दशमुखमहिषेभिः देवि बाष्पायिताभिः स्तनयुगम् अभिषेक्तुं तक्षणात् अन्वमंस्ताः रामास्त्राणि निमित्तमात्रमिहते लब्धाभिषेका स्वयम् रक्षस्तक्षभयाञ्जकार भवति भद्रासनस्तायिनी यद्दोष्णा अधिवेलदर्भदवतु ज्वालोष्मलानां तदा निःस्पृष्टैकलतौ दशैलशिखरैर्कर्पूरचूर्णायितम् शुद्धैवं हनुमन्मुखात् रघुपदे प्रत्यागतिं तत्क्षणात् आसीदत् वरदानुवर्तनवशात् आरूढकुम्भस्थलाम् कालो निद्रकदुष्णदानमतिरामात्यधिरेपध्वनि श्लाघाषाढुभिरस्तु देव भवतीं शत्रुं च यत्कुञ्जरः प्रत्यागतस्य भवतीम् अवलोह्य बर्धुः पादारविन्दसविदे भरतोपनीताम् पूर्वाभिषेकविपवायुचितां सपर्याम् मध्ये सदामहृतमैथिलराजकन्या सम्प्रेक्ष्य मैथिलसुता मणिपादरक्षे प्रत्युत्गतस्य भवती वरदस्य मौलो निर्दुष्य सा निवृतम् अञ्जलिना पुरस्तात् तारादिका प्रियसही असिषत्प्रणन्तुम् तुल्येऽपि देवि रघुवीरपदाशयद्वे पूर्वाभिषेकम् अधिगम्य गरीयसी त्वम् तेनैव कल्पभजता मणिपादरक्षे रक्ष प्लवङ्गमपदी भवतीं स्वमूर्ध्ना निर्वृत्तराक्षससमूमृगया विकारः रङ्गेश्वर सकलुराघवंसगोप्ता
வம்சக்ரமாத்முபநதம் பதமாததானஹ மான்யம் புனஸ்த்வயி பதம் நிததே ஸ்வகீயம் தத்தாதிருஷோ சரணயோ பிரணிபத்ய பர்துः பௌராஸ்த்வயா விதுதயோ பிரதிபன்ன சத்வாஹ பிராப்தாபிஷேக விபவாம் அபிபாதுஹே த்வாம் ஆனந்தபாஷ்பசலிலை புனரப்யஷிஞ்சன் மாதஸ்த்வயைவ சமயே விஷமேபி சம்யக் ராஜன்வதீம் வசுமதீம் அபலோஹ்ய ராமः சஞ்சீவனாய பரதஸ்ய சமக்ரபக்தேः சத்ய பிரதிஷவதயைவ சகார ராஜ்யம் பாதாவணி பிரதிகதஸ்ய புரீம் அயோத்யாம் பௌலஸ்ய ஹந்து அபிஷேக ஜலார்த்ர மூர்த்தேः அம்சே யதார்ஹம் அதிபாஸ்ய நிஜைர் யசோபிः கஸ்தூரிகேவ நிஹிதா வசுதா த்வயைவ யாசோ சதுர்தச சமாபதி விப்ரயுக்தா விஸ்வம்பரா பகவதி விதுருதா பவத்யா விந்யஸ்யதாம் ரகுபதேத்புஜசைலஸ்ருங்கே பூயோபி தேன சகிதா பவதி பபார நிஸ்தீர்ண துக்க ஜலதேர் அனகஸ்ய தேவி தத்சம்பிரயுக்த ரகுநாத பதாத்வயேன சத்ய சனந்தன முகை அபிதுர்நிரீக்ஷா சாம்ராஜ்ய சம்பத் அபரா வரதஸ்ய ஜக்ஞே நிர்கத்ய தேவி பரதாஞ்சலி பத்ம மத்யாத் பூய சமாகதவதி புருஷோத்தமேன பத்மே பத்ரமகிலம் மணிபாதரக்ஷே प्रादुच्चकार भवति जहतां त्रयाणाम् रघुपतिम् अधिरोप्य शोचिते रत्नपीठे प्रगुणम् अभजदास्त्वं पादुहे पादपीठम् तदपि बहुमतिस्ते तादृशी नित्यमासीत् खलु खलु महितानां कल्प्यते तारतम्यम् अनुवृत्त राम भावः संगे निर्विष्ट चक्रवर्ती पदाम् अधुनापि रङ्गनाथः स चमत्कारं पदेन भजति त्वाम् अनुवृत्त राम भावः संगे निर्विष्ट चक्रवर्ती पदाम् अधुनापि रङ्गनाथः स चमत्कारं पदेन भजति त्वाम् इति श्री रङ्गनाथ पादुका सहस्रे निर्यातना पद्धतिः अष्टमी வைத்தாளிக பத்ததிகி நவமி. இந்த பத்ததியில் ஜனன மரணத்தை போக்குகின்ற பாதுகையை சேவிப்பதாக குறிப்பிடுகின்றார். உபனிஷத்துக்கள் பெருமாளை எழுப்பி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாதுகைகளை பெருமாள் திருவடியில் சாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றது என்கின்றார். இந்த பத்ததியில் ஸ்ரீ ரங்கநாதரிடம் பாதுகையை சாற்றிக் கொண்டு எழுந்துருள வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றார். மேலும் பிரம்மா பாதுகையை ஏந்திக் கொண்டு காத்து கொண்டிருக்கிறாராம் என்று குறிப்பிடுகிறார். வைதாளிக பத்ததிகி நவமி. நமஸ்தே பாதுகே பும்சாம் சம்சாரார்ணவசேததே யதா ரோகஸ்ய வேதாந்தாக வந்தி வைதாளிகா ஸ்வயம். நமஸ்தே பாதுகே பும்சாம் சம்சாரார்ணவசேததே யதா ரோகஸ்ய வேதாந்தாக வந்தி வைதாளிகா ஸ்வயம். உச்சிதம் உபசரிஷ்யன் ரங்கநாத பிரபாதே விதிசிவ சனகாத்யான் பாஹ்ய கஷ்யானிருத்தான் சரணகமல சேவா சௌக்கிய சாம்ராஜ்ய பாஜாம் பிரதம விகித பாஹா பாதுகாம் ஆத்ரியேதாக பத்மாஜுஷ்டம் பஜது சரணம் பாதுகா லப்தவாரா பிரத்யாசன்னா சவ பரிஜனா பிராதராஸ்தாலயோக்யாः அர்த்தோன்மேஷான் அதிக சுபகாம் அர்த்த நித்ரானுஷங்கா
नाभि पद्मे तव नयनयो नाथ पश्यन्तु शोभाम् उपनमति मुहूर्तं शेषसिद्धान्तसिद्धम् तदिगचरणरक्षा रङ्गनाथत्वयैषा मृदुपदमधिरूढा मञ्जुभिः सिञ्चितैः स्वैः उपदिशतु जनानाम् उत्सवारम्भमार्ताम् रङ्गाधीशमरुद्गणस्य मकुडात् आम्नाय बृन्दस्य वा प्रत्यानीय समर्पिता विधिमुखैर्भारक्रमादागतैः वाहारोकनसंवृतं श्रवभरं सम्यक् विरेतुं क्षमा लीला सञ्चरणप्रिया स्पृशतु ते पादाम्बुजं पादुका वृत्तं क्रमेण बहुधा नियुतं विधीनाम् अर्धं द्वितीयमिदम् अङ्गुरिदं तवाक्तः लीला सखीपि उपनीय निवेद्यमाना मङ्क्तुं प्रभोत्वरयते मणिपादुहात्माम् दिव्याप्सरोऽपि उपदर्शितदीपवर्गे रङ्गाधिराजसुबहे रजनीमुखेऽस्मिन् संरक्षिणी शरणयो सविलासवृत्तिः नीराजनासनमसौ नयनु स्वयं त्वाम् आसना उचितमासनान्तरम् रङ्गनाथ यदि गन्धमीहसे सन्नतेन विधिना समर्पिताम् सप्रसादमधिरोह पादुहाम् परिजनवनितापि प्रेषित प्राञ्जलिस्त्वाम् प्रणमदि मदनोऽयं देवशुद्धान्तदासः पणिपरिशयनीयं प्रापयित्री सलीलम् पदकमलमियं ते पादुहा पर्युपास्ता इति निगमवन्ति वचसा समये समये गृहीत सङ्केतः अभिसरति रङ्गनाथः प्रतिपदमोहाय पादुके भवतीम् इति निगमवन्ति वचसा समये समये गृहीत सङ्केतः अभिसरति रङ्गनाथः प्रतिपदमोहाय पादुके भवतीम् इति श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे वैतालिकपत्तदिः नवमी शृङ्गारपत्तदिः दशमी ஸ்ரீரங்கநாதன் பாதுகையை சாற்றிக்கொண்டு அந்த புறத்திற்கு போவதையும் வருவதையும் வர்ணிக்கின்றார். தேவதைகள் பெருமாளை வந்து சேவிக்கும் போது அவர்கள் தலையில் உள்ள பூவில் தேனும் புழுதியும் இருக்கின்றது. அவை சேறு போல் இருக்கிறது. பெருமாளின் திருவடியில் படுகிறது. பெருமாள் அந்த திருவடியுடன் பாதுகையை சாற்றிக் கொள்ளும் போது பாதுகா தேவிக்கு சந்தனம் பூசுவது போல் இருக்கிறது என்கின்ற ரசமாய் குறிப்பிடுகிறார். வேதங்களாகிய ஸ்ரீகள் பெருமாளுடைய திருவடியாகிற தாமரைப்பூவை தலையில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். மகாலட்சுமி தனது திருக்கையாலே பெருமாளின் திருவடியை பிடிக்கிறாள். அப்படிப்பட்ட திருவடியில் எழுந்தருளியிருக்கும் பெருமையுடைய பாதுகை என்று குறிப்பிட்டு இந்த பத்ததியை முடிக்கிறார். ஸ்ருங்கார பத்ததிகி தசமி சௌரே ஸ்ருங்கார சேஷ்டானா பிரசூதிம் பாதுகாம் பஜே யாம் ஏஷ புங்கே சுத்தாந்தாத் பூர்வம் பஷாத் அபிப்ரபுஹோ சௌரே ஸ்ருங்கார சேஷ்டானாம் பிரசூதிம் பாதுகாம் பஜே யாம் ஏஷ புங்கே சுத்தாந்தாத் பூர்வம் பஷாத் அபிப்ரபுஹோ प्रणत त्रिदशेन्द्र मौलिमाला महरन्दार्द्र पराह पङ्गिलेन अन्वलिम्पति पादुहे स्वयं त्वाम् अनुरूपेण परेण रङ्गनाथः अवदादहि मां शुकानुशक्तम् पदरक्षे त्वयि रङ्गिन कदाचित् किमपि स्थितम् अद्वितीयमाल्यम् विरलावस्थितमुक्तिहं स्मरामि असहाय गृहीतरङ्गनाथाम् अवरोधाङ्गनसीं निपादुहे त्वाम्
सुदृशस्वयम् अर्चयन्ति दूरात् अवदंसोत्पलवासितैरपाङ्गैः निर्विद्यमानमपि नूतनसन्निवेशम् कैवल्यकल्पितविभूषणकायकान्तिम् कालेषु निर्विशसिरङ्गयुवानम् एका शृङ्गारनित्यरसिकम् मणिपादरक्षे निद्रायिदस्य कमितुर्मणिपादुहे त्वम् पर्यङ्गिका परिसरम् प्रतिपद्यमाना श्वासानिलप्रचलितेन भजस्य भीष्णम् नाभिसरोजरजसा नवमङ्गराहम् सैरवतिरजन्यां पादुहे रङ्गबन्धो शरणकमलपार्श्वे सादरं वर्तसे त्वम् पणिपदिशयनीया उत्थितस्य प्रभाते प्रथमनयनपादं पावनं प्राप्तुकामा शरणकमलसङ्गारङ्गनादस्य नित्यम् निगमपरिमलं त्वं पादुहे निर्वमन्ति नियतमधिशयाना वर्तसे सावरोधम् हृदयमधिवसन्तीं मालिकां वैजयन्तीम् उपनिषदबलाभे नित्यम् उत्तंसनीयम् किमपि जलति कन्या हस्तसंवाहनार्थम् तव तु शरणरक्षे देवि लीलारविन्दम् शरणसरसिजं तच्छारुचानूरहन्दुः अखिलान्तपुरवारेषु अनेकवारं पदावणीस्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथः विकारविक्रान्तिसहचरीं भवतीम् अखिलान्तपुरवारेषु अनेकवारं पदावणीस्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथः विकारविक्रान्तिसहचरीं भवतीम् इति श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे शृङ्गारपत्तदिः दशमी சஞ்சாரப்பத்ததிகி ஏகாதசி. ஸ்ரீ பாதுகையை சாற்றிக்கொண்டு பெருமாள் எழுந்தருளும் விஷயத்தை இந்த பத்ததியில் குறிப்பிடுகிறார். சேவித்தவர்களுக்கு ஜனன மரணம் நின்று போகிறது என்றும் உலக சேமத்திற்காக பெருமாளை அழைத்து கொண்டு வரும் பாதுகையை சேவித்தால் பெருமாளுடைய அனுகிரகமே பாதுகை வடிவில் வந்தது போல் தோன்றுகிறது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். ஸ்ரீ பாதுகையின் ஒத்தாசையினால்தான் ஸ்ரீராமன் அகல்வி இருக்குமிடம் எழுந்தருளி அவளின் சாபத்தை தீர்த்தார் என்று சாதிக்கின்றார். மேலும் பிருந்தாவனம் என்ற இடம் முன்பு நெருஞ்சி காடாக இருந்ததாம். பெருமாள் கிருஷ்ணாவதாரம் செய்த காலத்தில் மாடுகளை வளர்ப்பதற்காக ஸ்ரீ பாதுகையை சாற்றிக் கொண்டு அந்த காட்டிற்கு எழுந்தருளி அந்த காட்டை இந்திரனுடைய தோட்டமாக ஆக்கிவிட்டாராம். பெருமாள் விரோதிகளை கொல்ல சக்கரம் போன்ற ஆயுதங்களை பயன்படுத்துகின்றார். ஆனால் ஒரு சமயத்தில் தன் நகங்களாலேயே ஹிரண்யனை வதம் செய்தார். ஆனால் சஞ்சரிக்கின்ற காலத்தில் திருவடிகளில் பாதுகையை தவிர வேறு ஒன்றும் சாற்றிக் கொள்வது இல்லை என்று பாதுகா தேவியை உயர்வாக கூறுகிறார். முதலில் ஸ்ரீரங்கநாதர் பிரம்மலோகத்தில் எழுந்தருளி இருந்தார். பாதுகா தேவி அவரை அயோத்திக்கு அழைத்து வந்தாள். பின்பு ஸ்ரீரங்கத்திற்கு அழைத்து வந்தாள். பெருமாள் நிலையாக ஸ்ரீரங்கத்தில் இருப்பதால் இதைவிட மேற்பட்ட இடம் ஒன்றும் கிடையாது என்றும் தனது இறுதி காலத்தில் கரணங்கள் அடங்கும் சமயத்தில் பெருமாளை அழைத்து கொண்டு தன்னிடம் வர வேண்டும் என்றும் கூறி இந்த பத்ததியை முடிக்கின்றார். சஞ்சார பத்ததிகி ஏகாதசி அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி மிருத்னந்தி குச்சகண்டகான் இது சீதாபி யத்விருத்திம் இயேஷ பிரணமாமி தாம் அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி மிருத்னந்தே குச்சகண்டகான் இது சீதாபி யத்விருத்திம் இயேஷ பிரணமாமி தாம் சரதசதம் அம்ப பாதுகே ஸ்யாம் சமயாஹூத பிதாமகஸ்துதானி மணிமண்டபிஹா சுரங்கபர்துஹோ त्वदधीनानि गदा गदानि पश्यन् त्वदधीन परिग्रमो मुहुन्दः तदधीन तव पादुके विकारः
इतरेतरपारतन्त्र्यम् इत्थम् युवयो सिद्धम् अनन्यतन्द्रभूम्नोः रजसा तमसा सदुष्टसद्वे गहने छेदसि मामके मुकुन्दः उचितम् मृहया विहारमिच्छन् भवति मादृदपादुहे पदाभ्याम् क्षमया जगदाम् अपि त्रयाणाम् अवने देवि पदावनी त्वयैव अभिगम्य तमोऽपि संश्रितानाम् अभिगन्धा भवति स्वयं मुकुन्दः शिरसा भवतीं तदाति कश्चित् वितृत कोऽपि पदस्पृशा भवत्या उभयोर्मधुरैरिपादरक्षे त्वददीनां गतिम् आमनन्ति सन्तः सुषत शिरसा पदेन सद्वाम् गतिम् उद्दिश्य मुकुन्दपादहेदो अवरोहति पश्चिम पदास्वात् अधिरोहत्यनहस्तदेव पूर्वः समये अवदिश्य चैत्रयात्रा विविधान्तपुरबाहुरा व्यतीतः नियतं मणिपादुहे भवत्या रमते वर्त्मणिरङ्गसार्वभौमः निजसंहनन प्रसक्तलास्यम् शरदे त्वाम् अधिरुह्य रङ्गनाथः पदरक्षिणि पावनत्वमास्ताम् रसिकास्वादम् अतः परं न विद्मः पदयोरनयो परस्य पुंसः तदनुग्राह्य विहारपत्सदेवा शिरसो मणिपादुहे सुतेना मनसो वा मम भूषणं त्वमेका कृपया मधुवैरिपादरक्षे कठिने चेदसि मामहे विकर्तुम् मकुडेषु दिवौकसामि दत्ते भवती रत्नविसंस्तुलेषु यो ह्याम् शरणद्वयम् अर्पहस्य सौरेः शरदं भोरुहचाधुरी दुरीनम् शकटासुरताडनेऽपि गुप्तम् तव सख्या किल पादुहे तदासीत् उत्तस्तुषोरङ्गशयस्य शेषात् आस्थानसिंहासनमारुरुक्षोः मध्ये निशान्तम् मणिपादुहे त्वाम् लीलापदन्याससखीम् प्रपद्ये प्राप्ताधिकारा पदय प्रजानाम् उक्तम् सीताम् उक्तमपादुहे त्वाम् रङ्गेषितु स्वैरविकारकाले संयोजयन्यङ्घ्रिसरोजयुग्मे त्वयानुबद्धा मणिपादरक्षे लीलागतिम् रङ्गशयस्य पुंसः निशामयन्तो न पुनर्भजन्ते संसारकान्तारगतागतानि व्यूहान् पूर्वीरुचिरान् विहारान् पदक्रमेण प्रतिबध्यमाना बिभर्षि नित्यम् मणिपादुहे त्वम् मुरद्विषो मूर्तिरिव त्रिलोकिम् पदेषु मन्देषु महस्वरि त्वम् नीरन्द्रसंश्लेषवदी मुरारेः प्रत्यायनार्थम् किल पादुहे नः स्वाभाविकम् दर्शयसि प्रभावम् कृपाविशेषा क्षमया समेताम् प्रवर्तमानाम् जगदो विभूत्यै अवैवि नित्यम् मणिपादुहे त्वाम् आकस्मिकीम् रङ्गपदे प्रसक्तिम् उपागतानाम् उपतापशान्त्यै सुखावगाहाम् गतिमुद्वहन्तीम् पश्यामि सौरे पदवाहिनी त्वाम् निम्नेषु तुङ्गेषु च निर्विशेषाम् सह प्रयाता सततम् प्रयाणे प्राप्तासने संस्थितपादपीठा अलङ्घनीया सहजेन भूम्ना शायेव सौरे मणिपादुहे त्वम्
पदस्पृशारङ्गपदे भवत्या विचक्रमे विश्वमिदं क्षणेन तदस्य मन्ये मणिपादरक्षे त्वयैव विख्यातमुरुक्रमत्वं सञ्जारयन्ती पदमन्वतिष्ठः सहायकृत्यं मणिपादरक्षे मादस्तमेकामनुबंस गोप्तुः गोपायतो गौतमधर्मधारान् त्वत्त्रिविष्टमचरान् असपत्नयिष्यन् आरुह्यताश्यम् अवरुह्य च तक्षणेन शुद्धान्तभूमिषु पुनर्मणिपादरक्षे विश्रां यदि त्वयि विकारवचेन सौरिः विक्रम्य भूमिम् अखिलां बलिना प्रदिष्टां देवे पदावनि दिवं परिमादुकामे आसीदतो दिनकरस्य करोपतापात् संरक्षितुं पदसरोज उपर्यभूस्त्वम् त्वत्सङ्गमात् ननु सहृत् विधि सम्प्रयुक्ता शुद्धिं पराम् अधिजहाम शिवत्वहेतुम् रङ्गादिराजपदरक्षिणि कीदृशी सा गङ्गा बभूव भवदीय गदागदेन वृद्धिं गवां जनयितुं भजता विहारात् कृष्णेन रङ्गरसिकेन कृताश्रयायाः सञ्चारतस्तव तथा मणिपादरक्षे बृन्दावनं सबति नन्दनतुल्यमासीत् मादस्त्रयीमयतया चरणप्रमाणे देवि क्रमेषु विविधेषु सहायभूते नातस्य साधु परिरक्षणकर्मणि त्वं दुष्कृविनाशनदशासु विहङ्गराजः पादावने क्वचन विक्रमणे भुजानां पञ्चायुधीकररुहैर्भजते विकल्पम् नित्यं त्वमेव नियता पदयो मुरारेः तेनासि नूनम् अविकल्पसमाधियो ह्यात् अक्षेत्रविद्भिरधिगन्तुम् अशक्यवृत्तिः मादस्त्वया निरवधि निधिरप्रमेयः रत्यान्तरेषु चरणावनिरङ्गसङ्गी वात्सल्यनिघ्नमनसा जनसा कृतोऽसौ सम्पद्यते समुचितं क्रमम् आश्रयन्त्या सद्वर्त्मना बहवतोऽपि गतिर्भवत्या इष्टे पदावनि पुनः कैवेतरेषां व्यावर्तनस्य विषमात् अपतप्रचारात् रङ्गेश्वरे प्रहलास्य विशेषभाजः लीलोचितेषु तव रत्नशिलातलेषु मध्ये स्थितानि गदिषित् मणिपादरक्षे सव्याविशेषम् अनुयोक्तुम् इति प्रतीमः नित्यं पदावनि निवेश्य पदं भवत्यां निष्पन्दकल्पपरिमेय परीक्षदानि शृङ्गारशीतलतराणि भवन्ति काले रङ्गेश्वरस्य ललितानि गतागतानि मोहाक्षणानि कृतिभिर्परिकल्पितानि प्रीत्यैव रङ्गनृपति प्रतिपद्यमानः पश्यस्व नित्यम् इतरेषु परीक्षतेषु प्रत्याशनं भजति काञ्चनपादुके त्वाम् अन्तस्तृतीयनयनैः स्वयमुत्तमाङ्गैः आविर्भविष्य अतिरिक्तमुहाम्बुजैर्वा यस्यन्तिरङ्गरसिंहस्य विहारकाले वारक्रमेण कृदिनो मणिपादुके त्वाम् रङ्गेश्वरे समधिरूढविहङ्गराजे मादङ्गराजविधृता मणिपादुके त्वाम् अन्वासदे विदुर्दशारुसिदारपत्राः स्वर्गौकसुभगचामरलोलहस्ताः विष्णुपदं गदिवसात् अपरित्यजन्तीं लोकेषु नित्यविषमेषु समप्रचारां
अन्वेदुमर्हति धृताम् अखिलै सुरेन्द्रैः गङ्गा कथं नु गरुडध्वज पादुहे त्वाम् भिक्षाम् अपेक्ष्य धनुजेन्द्र गृहं प्रयादुः गुप्ते गमाभिकरतो महदश्च दूत्यम् तत्तादृशानि शरणावनिरङ्गमर्दुः त्वत्सङ्गमेन सुबहानि विशेषितानि निर्यज्यमान नवताळ लयप्रतिम्ना निर्यन्त्रणेन निजसञ्चरणक्रमेण मृत्नाशिरङ्गनृपतेर्मणिपादुहे त्वम् दुःखात्मकान् प्रणमतां दुरितप्ररोहान् नित्यं ययेव जगतो मणिपादरक्षे सत्तास्थितिप्रयतनेषु परं निदानम् सोऽपि स्वतन्त्रचरितत्वदधीनवृत्तिः का वा कथा तदितरेषु मिदम्बसेषु निर्विष्टनाकशयनेन परेण पुंसा न्यस्ते पदे त्वयि पदावनिलोकहेतोः स्वर्गौकसां तदनुधावन तत्पराणाम् सद्य पदानि विपदाम् अबदं भवन्ति शरद उपगमकाले सन्त्यजन् योगनिद्राम् शरणम् उपगतानां त्राणहेतो प्रयास्यन् जलधि दुहितुरङ्गान् मन्दमादाय देवी त्वयि खलु निदताति स्वं पदं रङ्गनाथः स्पृशसि पदसरोजं पादुके निर्विघातम् प्रविशसि च समस्तां देवि शुद्धान्धकश्याम् अपरमपि मुरारे पूर्वम् आबीरकन्यासु अभिशरणविधीनाम् अग्रिमा साक्षिणी त्वम् प्रतिभवनमनन्ये पादुहे त्वत्प्रभावात् विविधबभुषि देवे विभ्रमद्यूतकाले अभिलषितसपत्नी गेहयात्राभिघातम् ग्रहयति रहसि त्वां षोडशस्त्रीसहस्रम् तटभुवि यमुनाया छन्नभृत्तौ मुहुन्दे मुहुरधिगमहेतोर्मुच्यतां यौवदानां समयितुम् अलमासीत् शङ्खचक्रादिचिह्ना प्रतिपदविसिहिस्तां पादुहे पद्धतिस्ते अधिकरमुकुचाकान् मञ्जुवाचुकादीन् सरसिजनिलयाया प्रीतये सङ्ग्रहीतुम् प्रकटितगुणजालं पादुहे रङ्गबन्धोः उपनिषदडवीषु क्रीडितं त्वत्सनातम् मुनिपरिषदि गीतं गौतमी रक्षणं ते मुहुरणुकलयन्तो मञ्जुवाचशकुन्दाः उषसि निजकुलायात् उत्थिता दण्डकेषु स्वयमपि पदरक्षे स्वैरम् आम्रेडयन्ति यमनियमविशुद्धे यं न पश्यन्ति चित्तैः श्रुतिषु सुलहमात्रं दृश्यते यस्य भूमा सुलभनिखिलभावं मां च दृष्टे जनस्य स्वयम् उपहरसि त्वं पादुके तं पुमांसम् निधिमिव निरपायं त्वाम् अनादृद्य मोहात् अहमिव मम दोषं भावयन् क्षुद्रमत्तम् मयि सति करुणाया पूर्णपात्रे त्वया किम् परम् उपगमनीय पादुहे रङ्गनाथः कमपि कनकसिन्धो सैकते सञ्ज्वरन्तम् कलशजलति कन्या मेदिनी दत्तहस्तम् अनिशमनुभवेयं पादुहे त्वय्यधीनम् सुचरितपरिभागं सूरिभिः सेवनीयम् परिसरमुपयाता पादुहे पश्यमादः करणविलयकेतात् काञ्चिशीखे विवेके पुरुषमुपनयन्ति पुण्डरीकाक्षमग्रे पुनरुदरनिवासक्लेशविच्छेदनं नः स्वामे भूया सवति भवति पादुहे तापशान्त्यै
यामारूढो दिवमिव शुभै सेव्यमानो मरुद्भिः सौदामिन्या सह कमलया सख्यजा वृद्धिहेतुः काले काले शरदि करुणावर्षुः कृष्णमेघः सत्यालोका सहलमहिता स्थानतो वारुहूनां सङ्गे माद समधिकगुणं सैकदं सख्यजायाः पूर्वं पूर्वं चिरपरिचितं पादुके यत्यजन्त्या नीतो नादददितमिदरन्नीयते न त्वयासौ अग्रे देवी त्वयि सुमनसाम् अग्रिमै अन्तरङ्गैः विन्यस्तायां विने गरिमा वर्धितात् उत्तमाङ्गात् दत्ते पादं दरमुहुलितं तत्प्रभावादिसङ्गी देवः श्रीमान् तनुजमतनो जैत्रयात्रा स्वनन्यः पौरो दन्तान् परिकरयितुं पादुके सञ्जरिष्णोः व्यक्ता व्यक्ता वशिकविशिका वर्तनी रङ्गबद्धुः वेलातीत श्रुतिपरिमळे व्यक्तिमव्येदिकाल्ये विन्यासैस्ते विबुधपरिषन्मौलिविन्यासदृश्यैः आसंस्कारा द्विजपरिषदा नित्यम् अभ्यस्यमाना श्रेयो हेतु शिरसि जगतस्थायिनी स्वेन भूम्ना रङ्गाधीशे स्वयमुदयिनी क्षेप्तुमन्तं तमिश्रम् गायत्रीव त्रिचतुरपदा गण्यसे पादुके त्वम् भवतीं परस्य पुरुषस्य रङ्गिनः महिमानमेव मणिपादुमन्महे करमन्यता स्वमहिम प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठति त्वयि पदात् पदं प्रभुः तिथिरष्टमी यदवतारवैभवात् प्रथमातिथि श्रीजगधामजायत मणिपादुके तमुपनीय विकासो अतिथि करोषि तदनन्यचक्षुषाम् अपार प्रख्याते अशरणशरणेत्तयससा ननु त्वं रङ्गेन्दो शरणकमलस्याभिशरणं यया लभ्य पङ्ग प्रभृतिभिरसो रङ्गनहर प्रदोळीपर्यन्ते निधिरनकभाषां निरवधिः तत्तद्वासगृहाङ्गन प्रणयिन श्रीरङ्गशृङ्गारिणः बालव्याद विभक्तमन्दरगतिस्त्वं मे गतिपादुके लीला पङ्कजहल्लहोर्पलगलन् मात्मीकशेखोतिधा यत्रामोद विकल्पना विवृणुते शुद्धान्तवारक्रमम् सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णातिरूपभाग्यगणः यात्रासुरङ्गबर्धुः प्रथम परिस्पन्दकारणं भवति सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णातिरूपभाग्यगणः यात्रासुरङ्गबर्धुः प्रथम परिस्पन्दकारणं भवति इति श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे सञ्चारपत्तरिः एकादशी कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिव्यवसिरो भङ्गपञ्चानन पराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथादिह शिरं विजयताम्बुधि श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः।